concept of equality too. In this, we have seen yesterday inequalities. Okay, we have seen the caste system. That is, even though a country has gained the independence, and now I think it's more than 70 years, but still a caste system exists in our country. Okay, this has happened before pre-independence also, and now also. Okay, then yesterday's lecture we have seen what are the various inequalities in the caste system. We have seen there is a social inclusion. There is some group of the people, especially the scheduled tribes people and the scheduled caste people, are not included by the upper class people. Then we have seen there is not only the social inequalities, there is economic inequalities also. The employer, especially in the private sectors, are not allowing the employee of the lower level, lower status, they can come and join their organization. Even though we have seen that status of the women in Indian society is very low. Okay, we have seen that Indian society is a male-dominated society. But if you see the position of the women in the this scheduled caste and scheduled tribe, still low. Then we have seen the lower preference for the employment by the private sector. Now the government sectors has done the reservation. If you see educational sector, if you see the various job sectors in the public sectors, there is a reservation for the scheduled caste and the scheduled tribes. Okay, but if you see the private sector, there is no reservation like that. Mostly private sector prefer the employee with the higher class people, not the lower class people. Okay, then we have seen that there is an unjust treatment in the society. Society is not treating the scheduled tribe people and the scheduled caste people equally. Then there is, because of this, the literacy rate is also low, and it is a social taboo that the people will follow their fathers or their grandfathers profession. Okay, whatever they are doing, if someone want to break the taboo, so the people will consider that person as a crime. सीन का मतलब होता है कि गुनाह, वो कुछ गलत कर रहा है. ओके, नाउ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं. ओके, सो अर्लियर क्या होता था, लोग जो फार्मर्स होते थे वो विलेज करते थे, फार्मिंग करते थे. किसान का बेटा जो है किसान है, देन उसका बेटा जो किसान है. नाउ द पीपल आर ब्रेकिंग दिस ऑल सोशल टैबू. नाउ फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज भेज रहे हैं, एंड दे आर चेंजिंग द ऑक्यूपेशन. सो द लोअर स्टेटस जो पीपल है, वो लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों आगे बढ़े. सो वो लोग को लगता है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं. ओके, देन देयर इज अ लार्ज साइज फैमिली. लार्ज साइज फैमिली का मतलब होता है कि फैमिली साइज इनकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनका ज्यादा हो जाता है. सो ऑल दिस वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. कम टू पेज नंबर 105. Measures to combat the inequality and the social exclusion. That means, see, we have seen there is a social exclusion. People are not following the Constitution of India. The Constitution of India that we'll study in the Unit 5. जब आप Unit 5 पढ़ोगे, so we will see all the Constitution of the India. Constitution of India that is written by Dr. Babasaheb Ambedkar. That is given the fundamental rights and the fundamental duties of every citizen, that no individual can be discriminated on the basis of the religion or the caste or the position. That means every individual, whether he belongs to the lower caste, whether he belongs to the upper caste, he is a male, he is a female, or whether he is Gora or he is Kala, okay, or whether everyone is safe. Okay, so there is no discrimination, but still India has been proactive in putting the place to combat inequality and the social exclusion. Most significant of this have been Constitution of India and the series of the progressive, that means the Constitution of India has written, Baba Ambedkar has written, but जहाँ पे उन्होंने लिखा था, अब तक there is a lot of amendment. You know what the meaning of amendment so whatever it is the Constitution of India, उसमें बहुत सारे changes हैं. You see the Constitution of India जब हम पढ़ेंगे, that means Dr. Ambedkar has written वो टाइम पे कुछ चीजें थी वो भी applicable है. कुछ उसमें बहुत जैसे कर दिया, पता है? Hello. Okay. So this is all. The Constitution of India clearly stated the agenda of the post-colonial state in the terms of abolition or the at least reduction of the social inequality. That Constitution of India clearly बोल रहा है कि जो कोई discrimination
चाहिए एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडियन सिटीजन को राइट, वो फंडामेंटल राइट्स है, दैट मींस या स्कूल्स हो या कोई भी जॉब्स हो, कहीं पर भी लोअर क्लास स्टेटस पीपल हो या हायर स्टेटस, उसमें कोई भी नहीं। अगर एक धोबी का बेटा अब्रॉड जाता है तो ऐसे नहीं बोल सकते कि धोबी का बेटा है, ये नहीं जा सकता। अगर कोई स्लीपर है, ओके, या मेड है, उसके बच्चे को बाहर फॉरेन एजुकेशन, उसको डिसाइड person has a right. Okay, this is clear. We'll continue in the unit 5. Okay, now let's see next. Come to next page. Discrimination जो है वहाँ पे देखो public policy, in the terms of the public policy, the Indian government approach toward the scheduled caste and scheduled tribes in the three main elements. First is the non-discrimination, as I told you. There should be not be discrimination. We will make discrimination. Affirmative actions. Affirmative actions में क्या होगा? Measures in the state and state support. अगर आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपको पूछता है कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, शेड्यूल, दैट मींस कि ये लोगों को हेलो मैम, प्रेफरेंस मिलेगा जॉब में। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशंस, दैट मींस कि उनके साथ प्रोटेक्टिव प्रमोशंस मेजर्स मिलेंगे ताकि उनके साथ बॉन्डेड लेबर या उनके साथ कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल सम लोकेलिटी, फॉर एग्जांपल एक टावर है, नॉट फॉर द शेड्यूल कास्ट, तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट कभी कभी कुछ लोग तो अपना घर से करते हैं। रिसेंटली फेसबुक फॉर दिस नॉट राइट दिस इंडिविजुअली, आप ओवरऑल सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं बोल सकते because there is no discrimination on the basis of religion, not in particular country. Okay, now let's move to next. First is my intergroup conflict. We have seen in the first chapter, we have seen in the second chapter that India is a country. So definitely इतने सारे conflict तो और सबसे बड़ा जो conflict है, that is called communalism. Now what is communalism? Communalism is a belief or ideology for a social, political, religious group that the religion superior. क्या होता है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ये सोचता है कि उनका रिलीजन या उनकी आइडियोलॉजी या उनका पॉलिटिकल किसी और से बेटर है, माय रिलीजन, जब ऐसा प्रॉब्लम होता है, पीपल आर वेरी सेंसिटिव, देयर मदर वेरी सेंसिटिव, रिलीजन के लिए वेरी सेंसिटिव। सो क्या होता है, कम्युनल राइट्स हमारी कंट्री में क्यों होते हैं? मोस्टली देयर इज ए कम्युनल राइट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, राइट? और मोस्टली कम्युनल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस प्लेसेस पर जो भी है होता है, और उसके ऊपर से क्या होता है ना, इन इंडिया क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, बट देयर इज अ पॉलिटिक्स होती है, what they do, they create a problems. वो क्या बताते हैं, religion is better, the religion is better. आप explain करते whatever currently you all know. Yes, so let's see क्या है. According to Prabha Dikshit, communalism is a political doctrine which make a use of religious and cultural difference to achieve political stand. That people are whatever religious practice I am following is very good and it is superior, and what is yours is first. And मेरी political cultural background है, that is good, और आप लोगों का culture अच्छा नहीं है. So अगर आपका religion पे कोई बोल रहा है, is telling on your culture, definitely that hurt your feelings. See, we love father and mother, especially boys, and for girls very for fathers, है ना? This is a normal feeling. If someone, how modern you are, कितने भी आप broad हो, but if someone says तो वो problem होता ही है. And the political parties and some people, okay, they are neither Hindu, they are not Muslims. They just want to create, just want to create attention. तो वो लोग क्या करते हैं, ये चीज को use करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, second last paragraph में देखो, a communal group promotes the interest of its own member and is doing so may be hostile to the interest of the other group. The communal group try to provoke other group and their fundamental speeches. They are very political leaders. आपको पता है कुछ लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, आप लोगों ने सुना है.
every political parties have their let's see the last. Communalism is not new in India. For centuries, there is been communal tension, especially between Hindus and Muslims. The communal conflict reached a peak during the sea. Hindus and Muslims से जरा मैंने आपको बोला है कि two different religion in India, ideology different, beliefs different, culture difference. Okay, even though Hindus and Muslims साथ में मिलके रहना चाहते हैं, but they are political parties, they are group of people जो उनके अंदर problem create करते हैं. Okay. So next is MOP incidents DRC sees partition 1947 में there is a partition जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था. You know that at that time also बहुत सारी movies में आपने देखा होगा कि वो टाइम पे कितने सारे problems हुए थे. Then there will be incidents given of the Babri Masjid demolition. I think वो टाइम पे आप लोग you are not born at that time. Okay, even I was very small at that time. So first time there is a curfews and there is lot of tension. Okay, there is lot of tension. I think movies में आपने देखा होगा. Okay, बाबरी मस्जिद डिमोलिश एंड इसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुए एंड बहुत सफर हुए. It is see Muslims community भी उतनी सफर हुई, Hindu communities भी उतनी सफर हुई. There is lot of problem. Then there is a गोधरा कांड वहाँ पे सी गुजरात स्टेट में हुआ था. साबरमती एक्सप्रेस नियर गोधरा रेलवे स्टेशन इन 2002. आई थिंक एक गोधरा एक्सप्रेस में जितना मुझे पता है एक पर्टिकुलर एक बोगी में फायर आग लगा दी गई थी. ओके, बाय सम कम्युनिटी. सो दिस इज ऑल जो है प्रॉब्लम्स एंड देयर इज अ पीपल जो है स्पीचेस देते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या जो रिलीजियस लीडर होते हैं एंड जो हमारे रिलीजियस लीडर होते हैं वी फॉलो देम. एंड अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो हम लोग जो है मोटिवेट हो जाते हैं. ओके, सपोज इफ आई टेल यू कि आपको मनन प्रकाशन की बुक परचेज करना है, बीइंग योर टीचर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो. सेम वे रिलीजियस लीडर भी जब स्पीचेस देते हैं एंड देयर आर सम पीपल दोज हु गिव वेरी गुड स्पीच, स्पेशली महात्मा गांधी. कभी महात्मा गांधी की स्पीच सुनना. ओके, कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग जो भाषण देते हैं ना तो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं. सम पीपल स्लीप. सी लेक्चर आल्सो व्हेन द सम टीचर एक्सप्लेन्स तो आप लोग सुनते हो और कभी कभी कोई टीचर में आप लोग सोते हो. एक्सपीरियंस है ना आप लोगों में. ओके, सो सम पीपल व्हेन स्पीक सो इतना अच्छा लगता है कि हाँ आप सुनो. सो कभी कभी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ रिलीजियस लीडर मूवीज में आपने देखा होगा कि दे मोटिवेट द पीपल इन सच अ वे कि आप लोगों को वो काम नहीं करना है, देन टू यू आर मोटिवेटेड. Okay, for example, if I tell you to do this thing, you are not motivated or at all, but I will provide you 10 or 100 list of positive benefit. Okay, suppose if I am selling something, see this cream is very good for you and you are not at all interested, but if I'll say see this is this if you do this, so if I'll count 100 benefits to you, definitely थोड़ी एक फीलिंग आएगी कि हाँ आपको लेना है. That means it is totally depend upon how the other person influence you. Okay, so it is a duty of the teacher, it is a duty of the political parties, it is a duty of the educationists कि जो younger generation है उनको create करे कि there should be जो problems हुई है earlier हमारे countries में वो नहीं होगी. Because see Hindu and Muslims तो हमारी country में रहेगी but हमको problems नहीं करना है. So why this is there in your syllabus? Why? Because कि जो problems already हो गई, we don't have to repeat the history. हमको सीखना है कि whenever there is a rights, everything will be destroyed. जैसे कोरोना वायरस की वजह से, this is not right, it is by nature, but problems हुई है. Many companies were shut down, many people will be unemployment, बहुत सारे लोगों की जान चली गई. Okay, that means कि we have to learn from the mistakes. Let's see the causes. A growth of the communal organization. Communal organization. See this organization, as I told you, is not belief in any of the religion. इनको कोई religion belief नहीं है. They just want to create a problem. That's it. That is they instigate the people against one another. Okay. So I am neither Hindu neither Muslim. If I say I am Muslim, मैं हिंदू की बुराई कर रही हूँ. If I say हिंदू, मैं मुस्लिम की बुराई कर रही हूँ. Okay. So there are people like this. See, there is a political parties, the backdoor support to the command activities. और ये जो anti-social elements होते हैं, इनको जो support करती है वो कौन करती है? Political parties. Okay, next, absence of the uniform civil code. In India, there is an absence of the uniform civil codes. Uniform civil code absent है, इसकी वजह से क्या होता है कि हर कोई अपने हिसाब से चीजें communicate करता है. Inflammatory speeches. लोग क्या करते हैं? भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को जमा करते हैं, भाषण देते हैं, and then उसकी वजह से problem create होती है. Then there is a local problem also. अभी local problem क्या होती है? एक particular local area है जहाँ पे एक particular locality के लोग होते हैं. वहाँ पे देखो, next page पे आओ.
local problem involving two different communities such as molestation of the women by one man of the another community. Okay, मतलब एक community के person ने दूसरी community के person को molest किया, that means कि छेड़छाड़ किया, then वो क्या हो जाएगा, एक communal right हो जाएगा कि मेरी community की lady के साथ ऐसा क्यों किया. Okay, next pity issue. Sometimes there will be pity issues. अगर movies में कुछ चीज दिखाई जाएगी, there is a slaughtering of cow. काव जो है हमारी कंट्री में काव खाते हैं, मुस्लिम्स जो है नॉनवेज होते हैं, हिंदूज जो है उनकी वर्शिप करते हैं, इसका भी लोग फायदा उठाते हैं. ओके, देन देयर इज अ सिंगिंग ऑफ द सॉन्ग. सॉन्ग्स कुछ होते हैं जो कुछ दूसरे रिलीजन के ऊपर बनते हैं. देयर इज अभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हुए हैं. रिसेंट जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज सब्यसाची का मंगलसूत्र. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं. सब्यसाची का डिजाइनर जिसने एक मंगलसूत्र डिजाइन किया है, एंड दैट मंगलसूत्र एड इज वेरी वल्गर. Okay, and मंगलसूत्र is very important for the Hindus. It's very Hindus. तो Hindus की उन्होंने बोला कि हमारी sentiments को ये hurt कर रहा है. Okay, that means कि कभी-कभी ये issues की वजह से भी problem होती है. Failure of law and order. Sometimes हमारी कंट्री का law and orders भी जो है फेल हो जाता है. Police is unable to control. जैसे for example जो 1992 का riots हुआ था, बाबरी मस्जिद demolition. That time police fails. Then military आई थी, and military ने आके फिर situation को संभाला था. And militaries जो है वो normally borders पे होती है. If they leave border and come inside तो फिर border पे problem हो जाएगी. Next, there यात्रास by the political parties. आपने सुना है ना, political party के लोग पद यात्रा निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाएंगे. Okay, this is just उनको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, and they just create a problems. Disappointment of the Hindu community. हिंदू कम्युनिटी जो है उनको भी कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है, बिकॉज क्या होता है कि हमारी कंट्री में मुस्लिम्स जो है, क्रिश्चियन जो है, सिख जो है माइनॉरिटी में, एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज माइनॉरिटी वोट बैंक्स के लिए क्या करती है, उनको अपनी तरफ कर लेती है. नेक्स्ट, देयर इज अ रिलीजियस कंट्रोवर्सीज. रिलीजियस कन्वर्ट, जैसे बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियंस कम्युनिटी में, हिंदूज कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियंस में, या हिंदूज कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम. ये कन्वर्जन भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है. सम पीपल गिव देम द एफटी अमाउंट कि आप अगर अपनी कम्युनिटी छोड़ के ये कम्युनिटी में कन्वर्ट होगी तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा. सी द रिलीजन फीलिंग शुड बी कम फ्रॉम इनसाइड. वो पैसे वैसे के लिए नहीं होना चाहिए, बट समटाइम इट्स हैपन. ओके, देन द रोल ऑफ द फॉरेन प्रोसेस कम. समटाइम क्या होता है कि फॉरेन के जो लोग होते हैं वो भी जो है प्रेशर लगाते हैं, उनको हमारी कंट्री में आना है, तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. सो दिस आर ऑल द कॉजेज ऑफ द कम्युनलिज्म. अब कॉजेज तो हो गए कि ये सारे रीजन है. लेट्स सी द कॉन्सिक्वेंसेस. जब ये सब होता है हमारी कंट्री में, कम्युनली कॉजेज होता है, जब बाबरी मस्जिद का राइट हुआ था, या फिर जब गोधरा कांड हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई थी, तो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, लॉनेस एंड द डिसऑर्डर इन द सोसाइटी. सोसाइटी में लॉ नहीं होगा, सोसाइटी में डिसऑर्डर होगा, एवरीथिंग विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड. लूटिंग एंड ऑर्सन बाय द एंटी सोशल एलिमेंट. आपने सुना होगा ना कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो ट्रेन को चला रहे हैं, बस को चला रहे हैं, या पब्लिक्स के जो जनरल स्टोर्स है ऐसे लोगों को लूट रहे हैं, मतलब नॉर्मल पीपल विल बी हैम्पर. ओके, नेक्स्ट, मॉलेस्टेशन ऑफ द वीमेन. इसमें जो विमेन्स होते हैं उनको मॉलेस्ट करते हैं, और फिर जो इनोसेंट चाइल्ड्स होते हैं दूसरे कंट्री उसके, जैसे 92 की इसमें हुआ था, लोगों के घर जला दिए गए थे, बहुत सारे इश्यूज हुए थे, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ये सब चीजें. डिसरप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर राइट्स होता है तो क्या होता है, ऑफिसेज बंद हो जाती है. ओके, ट्रेन बंद हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री को नुकसान होता है. एक दिन अगर ट्रेन बंद हो गई या एक दिन ऑफिसेज बंद हो गई, तो क्या होगा, इतना प्रोडक्शन रुक जाएगा. नेक्स्ट, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लास्ट आई थिंक 1.5 year train is not working, even though now train is working full for fully vaccinated people. तो कंट्री को बहुत नुकसान हुआ है, बिकॉज रेलवे इज अ लाइफलाइन फॉर मुंबई, एंड रेलवे में लोग कम्यूटर्स जो कम्यूट नहीं कर रहे. सो अगर ऐसी होता है नेगेटिव इमेज ऑफ द स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर बार बार राइट्स होता है तो उसकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है. कि ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रेप केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर द वीमेन. इवन दो अगर मुंबई है तो मुंबई इज वेरी सेफ फॉर द वीमेन, है ना, क्योंकि दिल्ली वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द क्राइम बार बार होता है तो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो बुरा बन जाता है, एंड अगर फिर वो कंट्री भी जो है फॉरेनर्स की नजर में अच्छी नहीं होती है. फॉर एग्जांपल इफ द फॉरेन, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, जो टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया में आते हैं ताजमहल देखने और बहुत सारी चीजें देखने, इफ दे फाइंड कि यहाँ पे तो हमेशा राइट्स होते रहते हैं, तो फिर वो इंडिया में नहीं आएंगे. तो जो इंडिया में नहीं आते तो हमको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलता है, दैट इज हमारी तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं होती है. Then there is a loss of investment by the NRIs and the multinational companies. जो नॉन रेसिडेंस इंडिया है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हमारी कंट्री में पैसे नहीं लगाती है. कम्युनलिज्म गिव अ बूस्ट टू अंडरवर्ल्ड. जो अंडरवर्ल्ड्स होते हैं देन वो भी हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश करते हैं. आई होप अंडरवर्ल्ड्स का मतलब मालूम है आप लोग. ओके,
victimization of the members of the certain community in the other countries. For instance, Muslims have been victimized by some organization in USA. See, World Trade Organization में जो हमला हुआ था 26/11 का, ओके, सो उसकी वजह से मुस्लिम्स को बहुत कंट्री में टारगेट किया गया, ओके, दैट मीन्स ये मुस्लिम है, मतलब वो किसी और ने किया, बट वो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएसए में एंड यूरोपियन कंट्री में मुस्लिम्स के वीजेस बंद हो गए, दैट मीन्स कि करता कोई और है, बट उसके वजह से पूरी कम्युनिटी को सहना पड़ता है. सो दिस इज ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस. नो, कॉजेस भी देखा हमने, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखा. लेट्स सी द मेजर्स कि क्या मेजर्स है. एक ही पॉइंट है, लेट्स सी. मेजर्स हमको करना है, दैट मीन्स कि वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द कम्युनलिज्म, बिकॉज कम्युनलिज्म हैम्पर हमारी सोसाइटी को हैम्पर कर रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन पे हैम्पर कर रहा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी टेक सर्टेन मेजर्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स है लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए. कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर ऐसे होना चाहिए कि पीपल शुड अफ्रेड, इफ आई एम नॉट वेयरिंग द हेलमेट तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. अभी देखो, एक चीज बताती हूँ,